بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار ماشاءاللہ جزاک اللہ
عالی جناب مولانا ایلیہ رضا صاحب جلال پوری حضرات، ہمارے یہاں جب بھی کوئی اہتمام ہوتا ہے تو اولاً تلاوت کلام ربانی سے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے، پھر حمد خدا بند عالم، یعنی تمام تعریفیں اس خدا پاک کے لیے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، سرمدی ہے، سمدی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، یعنی خالق کائنات بھی ہے اور جنم داتا بھی، رازق حیوان و انسانات بھی ہے اور ان داتا بھی، قادر مطلق بھی ہے اور سرو و شکتیمان بھی، رحیم بھی ہے، دیالو بھی، کریم بھی ہے، کرپالو بھی۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی جینی ہو گیا، کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی جینی ہو گیا، آ گیا بزم حسینی میں حسینی ہو گیا۔ کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی جینی ہو گیا، کوئی ہندو کوئی مسلم کوئی جینی ہو گیا، آ گیا بزم حسینی میں حسینی ہو گیا۔ اور چار مصرے میں تعزیے کے حوالے سے جناب محترم مرحوم نیّر سرسیوی کے آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں کہ اسکتوں کے کہ سو رہا تھا حصار غفلت میں، سو رہا تھا حصار غفلت میں، اب جگانے نصیب بیٹھا ہوں، سو رہا تھا حصار غفلت میں، اب جگانے نصیب بیٹھا ہوں، اور دور ہٹ مجھ سے خواہش جنت، تعزیے کے قریب بیٹھا ہوں، دور ہٹ مجھ سے خواہش جنت، تعزیے کے قریب بیٹھا ہوں، دور ہٹ مجھ سے خواہش جنت، تعزیے کے قریب بیٹھا ہوں۔ آئیے حضرات، گزارش ہے جناب مولانا سعد الرضا غدیری صاحب کی خدمت میں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے آپ اور نیند کے سماعت کو منور کریں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ان کے تقاضے بابا سے بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ السلام علیکم۔ صلوات پڑھیں۔ اللہ کا کرم ہے، عنایت علی کی ہے، اللہ کا کرم ہے، عنایت علی کی ہے۔ اس شعر میں آگے آپ پڑھتا ہوں، بہت پسندیدہ ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کا کرم ہے، عنایت علی کی ہے، اللہ کا کرم ہے، عنایت علی کی ہے، میری زبان پہ آج جمد علی کی ہے، میری زبان پہ آج جمد علی کی ہے۔ اور یہ شعر بہت تھا مولانا نے اپنے تکرار کے لیے بڑا ہی معرفت کا یہ شعر ہے کہ پلٹا جو آفتاب تو کہنے لگا خدا، کہ پلٹا جو آفتاب تو کہنے لگا خدا، ہے مملکت ہماری حکومت علی کی ہے مملکت ہماری حکومت علی کی ہے۔ حاضر کرتا ہوں کہ زینب کا لہجہ سن کے یہ کہنے لگے نہیں، زینب کا لہجہ سن کے یہ کہنے لگے نہیں، لہجے کے ساتھ ساتھ خطاب علی کی ہے، لہجے کے ساتھ ساتھ
खिताबत अली की है सब। जा रहा है कि इसी सरजमी के शायद आप लोग जान सकते हैं। फिर आने के बाद सलाम पर मोहम्मद है अबू तालिब के दामन में तुझे शहवार हो, है अबू तालिब के दामन में तुझे शहवार हो, साथे अहमद एक जाते हैदर एक करार दो, है अबू तालिब के दामन में तुझे शहवार दो, जाते अहमद एक जाते हैदर एक करार दो, तो अब ना आएगा कोई काबे में हैदर दूसरा, फिर ना होगी खाने काबा तेरी दीवार दो, फिर ना होगी खाने काबा तेरी दीवार दो, कि बन के नाका आज कितने खुश है फखरुल अंबिया, कि बन के नाका आज कितने खुश है फखरुल अंबिया, दोष पर बैठे हुए हैं खुद के सरदार दो, दोष पर बैठे हुए हैं खुद के सरदार दो, कि है अबू तालिब के दामन में तुझे शहवार दो, जाते अहमद एक जाते हैदर एक करार दो, अब न आएगा कोई काबे में हैदर दूसरा, फिर न होगी खाना काबा तेरी दीवार दो, तो बन के नाका आज कितने खुश है फखरुल अंबिया, दोष पर बैठे हुए हैं खुद के सरदार दो, तो हो गई हैरान आंखें, हो गई हैरान आंखें, रोज़ा सरकार पर बीच में एक फूल है और दाएं बाएं हाथ दो, बीच में एक फूल है और दाएं बाएं हाथ दो, कि है अबू तालिब के दामन में तुझे शहवार दो, जाते अहमद एक जाते हैदर एक करार दो, अब ना आएगा कोई काबे में हैदर दूसरा, फिर ना होगी खाने काबा तेरी दीवार दो, तो बन के नाका आज कितने खुश है फखरुल अंबिया, दोष पर बैठे हुए खुद के सरदार दो। तो अल्लाह इकराम ये शेर हाजिर करता हूँ कि ऐ अली की लाडली तेरी शुजाअत पर सलाम, ऐ अली की लाडली तेरी शुजाअत पर सलाम, गोद में पाले हैं तूने जाफर तैयार दो, गोद में पाले हैं तूने जाफर तैयार दो, और ये आपकी मार्फत पर शेर कहने जा रहा हूँ कि कब्र में है अबू तालिब के दामन में तुझे शहवार दो, जाते अहमद एक जाते हैदर एक करार दो, बन के नाका आज कितने खुश है फखरुल अंबिया, दोष पर बैठे हुए खुद के सरदार दो, ऐ अली की लाडली तेरी शुजाअत पर सलाम, गोद में पाले हैं तूने जाफर तैयार दो, तो कब्र में मुझसे गले मिलकर फरिश्ते ने कहा, कब्र में मुझसे गले मिलकर फरिश्ते ने कहा, मिल गए फिर एक अदा खाने में मातमदार, मिल गए फिर एक अदा खाने में मातमदार। सलाम। माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे मौलाना साबिर रज़ा साहब को। आइए हज़रात, बगैर किसी तमीज़ के गुजारिश है जनाब मुशीर साहब जलालपुरी की खिदमत में कि आप तशरीफ लाएं और बारगाह मौला में मंदूम तरह अकीदत पेश करें। आप हज़रात से गुजारिश है इनके इस्तक़बाल में आवाज़ बुलंद आ रहे सलवात पढ़ें। हमारे यहाँ मामूल है कि दोबारा 8 दिन इमाम हुसैन साहब की अदा का इंतजाम किया जाता है, उसके बाद इमाम बारगाहों को बंद कर दिया जाता है। इस मुनासबत से एक अदा मुलाज़ा फरमाए कि दुनियावी रंजो अलम पर न बहाओ आंसू, दुनियावी रंजो अलम पर न बहाओ आंसू, अपनी आंखों में दुरे बेश बहा रहने दो, अपनी आंखों में दुरे बेश बहा रहने दो, जाने कब कौन चला आए यहाँ हुर बनकर, जाने कब कौन चला आए यहाँ हुर बनकर, इसलिए शह का आधा खाना खुला रहने दो, इसलिए शह का आधा खाना खुला रहने दो, जाने कब कौन चला आए यहाँ हुर बनकर, इसलिए शह का आधा खाना खुला रहने दो। और ये मोहम्मद की शरीयत में तवज्जुल कैसा, ये मोहम्मद की शरीयत में तवज्जुल कैसा, जो बुरा कल था उसे आज बुरा रहने दो,
जो बुरा कल था उसे आज बुरा रहने दो, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम मुसलमान की शान में एक मदहिया कलाम मुलादा फरमाए कि सवाल हमसे मत करो कहाँ कहाँ हुसैन है, सवाल हमसे मत करो कहाँ कहाँ हुसैन है, जहाँ जहाँ रसूल है वहाँ वहाँ हुसैन है, जहाँ जहाँ रसूल है वहाँ वहाँ हुसैन है। और अली के उसवे कमाल का ये शाहकार हैं, अली के उसवे कमाल का ये शाहकार हैं, तो फिर ये कहिए शाहे अमरे कुन फका हुसैन है, तो फिर ये कहिए शाहे अमरे कुन फका हुसैन है। और इन्हें तो बासरीन ने बसा लिया है चश्म में, इन्हें तो बासरीन ने बसा लिया है चश्म में, निगाहे बेबसीर में कहाँ आया हुसैन है, निगाहे बेबसीर में कहाँ आया हुसैन है। और नमाज़े सब्र इश्क का ये सिलसिला दराज है, नमाज़े सब्र इश्क का ये सिलसिला दराज है। खबर है मस्जिद यकीन में अज़ां हुसैन है, खबर है मस्जिद यकीन में अज़ां हुसैन है। और मिसाले ताजदारे अंबिया वो नफ्से किब्रिया, मिसाले ताजदारे अंबिया वो नफ्से किब्रिया, मशीयते खुदाए हक के राज़दा हुसैन है, मशीयते खुदाए हक के राज़दा हुसैन है। मिसरा देखें कि हर एक सितारा चरखे कुदसियत का आफ्ताब है, हर एक सितारा चरखे कुदसियत का आफ्ताब है। दूसरा मिसरा बतौर खास कि हर एक सितारा चरखे कुदसियत का आफ्ताब है, सजाए करबला में ऐसी कहकशां हुसैन है, सजाए करबला में ऐसी कहकशां हुसैन है। हर एक सितारा चरखे कुदसियत का आफ्ताब है, सजाए करबला में ऐसी कहकशां हुसैन है। और हर एक फूल इनके एक हुक्म पर निसार है, हर एक फूल इनके एक हुक्म पर निसार है। रियाज़े दीने मुस्तफ़ा के पासबां हुसैन है, रियाज़े दीने मुस्तफ़ा के पासबां हुसैन है। और ये सिर्फ बतौर खान माहिर साहब देखें कि तिलावते कलामे हक तो इनका मशगला रहा, तिलावते कलामे हक तो इनका मशगला रहा। पैर रज़ाए किब्रिया सरे से ना हुसैन है, पैर रज़ाए किब्रिया सरे से ना हुसैन है। तिलावते कलामे हक तो इनका मशगला रहा, पैर रज़ाए किब्रिया सरे से ना हुसैन है। और हकीकते अबद की सुर्खियाँ हैं हर हर्फ में, हकीकते अबद की सुर्खियाँ हैं हर हर्फ में। रकम फलक पे दास्ताने खून चका हुसैन है, रकम फलक पे दास्ताने खून चका हुसैन है। और जो शेर मसाइब की देख लीजिए कि दहन में शह के जब शबीह मुस्तफ़ा ने दी ज़बां, दहन में शह के जब दहन में शह के जब शबीह मुस्तफ़ा ने दी ज़बां, तड़प के बोल उठे मीरे तशनगा हुसैन है, तड़प के बोल उठे मीरे तशनगा हुसैन है। और मुशीर दश्ते करबला में बेखफन पड़े हुए, मुशीर दश्ते करबला में बेकफन पड़े हुए, ज़मीने मारिया पे ज़ेरे आसमां हुसैन है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें आप। बेहतरीन कलाम आपकी समातों के हवाले कर रहे थे। 4 मिसरे आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, मैंने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, फिर आपने नबी को कलम क्यों नहीं दिया। मैंने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, फिर आपने नबी को कलम क्यों नहीं दिया। बोले ये इंतकाम था खैबर की जंग का, उस दिन नबी ने हमको अलम क्यों नहीं दिया। बोले ये इंतकाम था खैबर की जंग का, उस दिन नबी ने हमको अलम। मैंने कहा कि आप सहाबी नबी के थे, फिर आपने नबी को कलम क्यों नहीं दिया। बोले ये इंतकाम था खैबर की जंग का, उस दिन नबी ने हमको अलम क्यों नहीं दिया। आइए रसूल अल्लाह से सवाल किया जाए, या रसूल अल्लाह आप इनको अलम दे देते, या नबी अल्लाह आप इनको अलम दे देते, लेकिन या नबी अल्लाह आपने इनको अलम क्यों नहीं दिया। तो शायद नबी अल्लाह भी फरमाए यार तुम्हें नहीं मालूम। अख्तर सिलसिली ने बताया कि नबी अल्लाह भी फरमाते होंगे यार तुम्हें नहीं मालूम कि बुज़दिल भी बहादुर का आशम मांग रहे थे, बुज़दिल भी बहादुर का आशम मांग रहे थे, जाहिल भी मुअल्लिम से कलम मांग रहे थे।
معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مان رہے تھے۔ معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، معلوم نہیں تھا جنہیں املا بھی علم کا، وہ لوگ بھی خیبر میں علم مان رہے تھے۔ آئیے حضرات اختر سے سیڑھی کے انہی مصرعوں کے ذریعے میں گزارش کر رہا ہوں عالی جناب عقیل سلموں سے، عقیل صاحب اسما جلال پوری سے کہ آپ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ ایک قطع سماعت فرمائیں کہ ذکر سرور کے لیے دل نہ اگر مائل ہو، ذکر سرور کے لیے دل نہ اگر مائل ہو، یہ سمجھ لو کہ غبار آئینے پہ بیٹھ گیا، یہ سمجھ لو کہ غبار آئینے پہ بیٹھ گیا۔ شے کا بیمار تھکا ہارا نہیں کوفے تک، شے کا بیمار تھکا ہارا نہیں کوفے تک، صرف سجدوں کے لیے وقت سفر بیٹھ گیا، صرف سجدوں کے لیے وقت سفر بیٹھ گیا، صرف سجدوں کے لیے وقت سفر بیٹھ گیا۔ اور کچھ اس طرح سے بگاڑے حسین نے چہرے، کچھ اس طرح سے بگاڑے حسین نے چہرے، ستم نے چھوڑ دیا گھر میں آئینہ رکھنا، ستم نے چھوڑ دیا گھر میں آئینہ رکھنا، کچھ اس طرح سے بگاڑے حسین نے چہرے، کچھ اس طرح سے بگاڑے حسین نے چہرے، ستم نے چھوڑ دیا گھر میں آئینہ رکھنا۔ تمام عمر کے خیر عمل سے بہتر ہے، تمام عمر کے خیر عمل سے بہتر ہے، عزا کا فرش بچھانا سمیٹنا رکھنا، عزا کا فرش بچھانا سمیٹنا رکھنا۔ نا سلوات ایک مطلب چند شعر کہ تیرے شبیر کی پرنور عبادت زینب، تیرے شبیر کی پرنور عبادت زینب، آج بھی خانہ کعبہ کی ہے زینت زینب، آج بھی خانہ کعبہ کی ہے زینت زینب، اور صبر مظلوم کے طوفان کی طاقت زینب، صبر مظلوم کے طوفان کی طاقت زینب، قطر ظالم کی اڑا لے گئی ہر چھت زینب، قطر ظالم کی اڑا لے گئی ہر چھت زینب، اور کس قدر حق سے ملی ہے تجھے عظمت زینب، کس قدر حق سے ملی ہے تجھے عظمت زینب، تیرے ذمے ہے امامت کی قیادت زینب، تیرے ذمے ہے امامت کی قیادت زینب، ایک نظر دیکھ لے وہ چہرے اکبر کی طرف، ایک نظر دیکھ لے وہ چہرے اکبر کی طرف، جس کو کرنا ہو محمد کی زیارت زینب، جس کو کرنا ہو محمد کی زیارت زینب، تیرے عباس نے پانی پہ علم گاڑ دیا، تیرے عباس نے پانی پہ علم گاڑ دیا، جب چلی نہر پہ شمشیر شجاعت زینب، جب چلی نہر پہ شمشیر شجاعت زینب، تیری پیشانی پہ لکھے ہیں وفا کے سورے، تیری پیشانی پہ لکھے ہیں وفا کے سورے، تیری صورت ہے کہ عباس کی صورت زینب، اور زخم دیتی ہے مگر خون نہیں بہنے دیتی، یہ شعر بطور خاص کہ زخم دیتی ہے مگر خون نہیں بہنے دیتی، تیرے قبضے میں ہے وہ تیغ خطابت زینب، تیرے قبضے میں ہے، اور جب بھی کھل جاتا ہے لب پر تیرے قرآن مبین، جب بھی کھل جاتا ہے لب پر تیرے قرآن مبین، یاد آ جاتی ہے زہرا کی تلاوت زینب، یاد آ جاتی ہے زہرا کی تلاوت زینب، کیوں نہ تعظیم تیری سید سجاد کرے، کیوں نہ تعظیم تیری سید سجاد کرے، تیری آغوش میں کھیلی ہے امامت زینب، تیری آغوش میں کھیلی ہے امامت زینب۔ آخری شعر کہ تیرے عباس نے چاہا تھا الٹ دوں دنیا، تیرے عباس نے چاہا تھا الٹ دوں دنیا، روک دی آتے ہوئی تو نے قیامت زینب۔ صلوات علی محمد۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہترین کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے جناب مولانا عقیل صاحب۔ 4 مصرے میں جناب آصف جلال بن نوری کی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ 4 مصرے کی اتحاد بین المسلمین کے تحت مل جل کے نمازیں پڑھی جا رہی ہے، لکھنؤ، حیدرآباد جگہ بہتر واقف ہیں۔ 4 مصرے یہ شعر کا ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو شعر میں ملاحظہ فرمائے کہ آصف جلال بن نوری کہتے ہیں کہ ہاتھ سے ہاتھ ملے دل سے ملے دل آصف، ہاتھ سے ہاتھ ملے
दिल से मिले दिल आसिफ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े मिलजुल कर। हाथ से हाथ मिले दिल से मिले दिल आसिफ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़े मिलजुल कर। और फक्र की बात है पढ़ने लगे मिलजुल के नमाज, फक्र की बात है पढ़ने लगे मिलजुल के नमाज। कितना अच्छा है जो मातम भी करे मिलजुल कर, कितना अच्छा है जो मातम भी करे मिलजुल कर। आइए हजरात, गुजारिश है जनाब मेहदी जलालपुरी की खिदमत में कि तशरीफ लाए, आप हजरात नारे सलवात से इस्तकबाल करें। हजरत वक्त नहीं, बस एक मतला दो शेर, एक सलवार पढ़ मोहम्मद वाले। हजरत मतला बतौर खास जिंदा है शहीद राहे खुदा शबीर बताने आए हैं। जिंदा है शहीद राहे खुदा और शबीर बताने आए हैं। से अपना कटा कर नेज़े पे कुरान सुनाने आए हैं। से अपना कटा कर नेज़े पे कुरान सुनाने आए हैं। और ये फर्शे अज़ा, ये अश्के अज़ा, ये ताज़िया, ये मश्को अलम और ज़ैनब का करम है जो हम तक ये सारे खजाने आए हैं। ज़ैनब का करम है जो हम तक ये सारे खजाने आए हैं। और आखिर शेर, नाकाम हुए हैं मंसूबे जालिम की हुकूमत लर्जी है जब जब भी हमारे हाथों में तस्बीह के दाने आए हैं। जब जब भी हमारे हाथों में तस्बीह के दाने आए हैं। आप तमामी हजरात की खिदमत में गुजारिश है कि नारे सलवात बोलते हुए जरा सा आगे आ जाएं, जो है थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं। तक आपके रूबरू थे जनाब मेहदी जलालपुरी साहब, जो अपने बेहतरीन अंदाज में आपकी समातों के हवाले अपना कलाम पेश कर रहे थे। आइए हजरात, दावत दी जाए कि एक इम्तिहान है जिक्र हुसैन का मिंबर, एक इम्तिहान है जिक्र हुसैन का मिंबर। खतीब अपने लहू का असर दिखा देगा, अगर जमीन पे गुंजाइशें नहीं होंगी खुदा फलक पे भी फर्शे अज़ा बिछा देगा, खुदा फलक पे भी फर्शे अज़ा बिछा देगा। पढ़ के नहजे बलागा दुनिया में लोग अच्छे अदीब होते हैं, तेरे खुतबों का फैज़ है ज़ैनब आज हम में खतूर होते हैं। आइए हजरात, इन्हीं मिसरों के ज़ैल गुजारिश कर रहा हूँ आली जनाब मौलाना सैयद परवेज़ कमाल कुम्मी साहब की खिदमत में कि आप जलवा फरोज़ मिंबर हों और अपने नूरानी बयानात से आप मुमिन के कुलूब को मुनव्वर व मसाब करें। आप हजरात से गुजारिश है नारे इस्तक़बाल, नारे सलवात से बाबाज़े बुलंद से इस्तक़बाल करें। बाबाज़े बुलंद नारे सलवात। रहमल्लाहु मन तअल फातिहा।
لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله نعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم صلوات پڑھیں اللہ. برادران اسلام محترم سامعین، میری قوم کے نوجوان و بزرگ حضرات اور علماء اکرام اور میرے چھوٹے بھائی، ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید کے مشہور و معروف سورہ اور اس کی پہلی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں ارشاد ہو رہا ہے، قسم ہے اس قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اور میرے حبیب یقیناً تم پیغمبروں میں سے ہو اور صراط مستقیم پر، بہترین راستے پر تم قائم ہو، تم چل رہے ہو. یہ اللہ نے اپنے حبیب کے بارے میں قرآن میں کہہ دیا کہ جس راستے پہ میرے پیغمبر تم چل رہے ہو وہ میرا راستہ ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے تم پیغمبروں میں سے ہو. بات تو طے ہو گئی. اگر کوئی ذرہ برابر یہ شک کرے کہ نبی نہیں تھے تو خدا کی قسم نہ تو وہ صحیح طریقے سے قرآن کا ہے نہ ہی اللہ کا ہے. کیوں قرآن کہہ رہا ہے اور اللہ نے قرآن میں کہا پیغمبروں میں سے ہو. اب ذرہ برابر چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے. کوئی یہ کہہ دے کہ نبی یہ تھے وہ تھے، یہ وہ کہنے سے پہلے قرآن کو دیکھ لے، قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور میرے حبیب تمہیں صرف ہم نے پیغمبروں میں سے قرار نہیں دیا ہے، بلکہ ہم نے تمہیں صادق و امین بنا کر پیدا کیا ہے. اگر کوئی پیغمبر کو صرف پیغمبر مانتا ہے تو مانے، مگر عزیزان گرامی پیغمبر ماننے سے پہلے صادق و امین ماننا ہوگا، صادق و امین ماننا ہوگا. اور یہی نہیں میرے پیغمبر، جہاں ہم نے تمہیں صادق و امین بنا کر پیدا کیا وہیں پر ہم نے تمہیں وارث کتاب بنا کر پیدا کیا. اور یہی نہیں میرے پیغمبر، جہاں پر میں نے تمہیں وارث کتاب بنا کر پیدا کیا تو یہ بھی جان لو میں نے تمہیں معجز نما بھی بنا کر پیدا کیا. اے میرے اللہ، نبی کو معجزہ کیوں
दिया का वजह है उम्मत में से कुछ अफराद आके ये कहेंगे कि मैं मानता तो हूं मगर ये करो तब मानूंगा। अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह की मसलहत है नबी को जो देता गया नबी लेते गए। जरा तवज्जो करिएगा, नबी को अल्लाह ने जो दिया नबी ने ले लिया। अब ये कैसे उम्मती है जो अल्लाह नबी को दे वो नबी ले लेता है, तो जो नबी हमें दे हमें भी ले लेना चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अजीज़ाने गिरामी, अल्लाह से कभी भी पैगंबर ने ये नहीं कहा कि मुझे ये नहीं चाहिए, जो दिया वो ले लिया। मगर परेशानी का मामला एक बहुत बड़ा है। ये जो कुछ मिला है बड़ा जुल्म सहने के बाद, बड़े जुल्म सहने पड़े हैं पैगंबर को, तब जाके ये सब कुछ मिला है। का क्या क्या जुल्म, का ऐसे ऐसे जुल्म जो बयान किए नहीं जा सकते, मगर एक जुल्म बहुत बड़ा है। वो ये, अगर से इस उस्मापुर में कोई मंत्री आ जाए या प्रधानमंत्री आ जाए या सीएम जी आ जाए, अब उस्मापुर की आवाम के ऊपर क्या जिम्मेदारी है? भाई वो हमारे हाकिम हैं, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उनकी इज्जत करें। का क्यों? का यही सबसे बड़े भारतीय होने की दलील है। जब तक हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो हमारे कस्बे का भी नाम खराब होगा और हमारा भी नाम खराब होगा। भले ही सही, चाहे जैसे हैं, हाय हाय, चाहे जैसे हैं, हमें एहतराम करना है। का क्यों? का मनसब ही कुछ ऐसा है, मनसब ही कुछ ऐसा है। तो दुनिया में अगर किसी इंसान को छोटा सा मनसब मिल जाए तो एहतराम लाजिम है। का क्यों? इसलिए कि बेइज्जती ना होने पाए। अरे जिसे अल्लाह ने कायनात का पूरा मनसब दे दिया हो, अगर हम उसकी बेइज्जती करें तो खुदा की कसम हमारी जात भी बदनाम है, हमारा खून भी बदनाम है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ाने गिरामी, हमारी जात भी बदनाम है, हमारा खून भी बदनाम है। एक बात मैं आहिस्ता से कहना चाहता हूँ, वो ये है, जो पैगंबर का एहतराम न करे तो उसकी शक्ल न देखा करो, खून का मुतालिया किया करो। इसलिए कि पैगंबर के जमाने में पैगंबरियत का चोला पहनकर इस्लाम का दावा करने वाले बहुत सारे थे, मगर खूनी और हकीकी रिश्तेदार ऐसा था जिसे चेहरा देखकर ये हमें तस्लीम करने की जरूरत नहीं थी कि ये पैगंबर के कौन है, बल्कि रिश्तेदारियों पे हमें नहीं जाना है, नबी के लफ्जों पे हमें गौर करना है। अगर नबी मिंबर के करीब बुलाए तो देखो किसे बुला रहा है, अगर नबी मैदान में बुलाए तो देखो किसे बुला रहा है। तारीख के आईने ने हर गोशे को दिखाया, सिवाय अली को नबी ने किसी को आज तक बुलाया ही नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पास। अजीज़ाने गिरामी, लिहाजा खूनी एतबार से भी वो बदनाम है। लिहाजा हमारे लिए जरूरी है, अगर कोई पैगंबर के ऊपर कूड़ा करकट डालता है तो कूड़े करकट को ना देखो, उसे देखो, इसके खून को देखो। मगर कूड़ा करकट डालने के बावजूद अगर वो सुधर जाए
اور کلمہ پڑھ لے، ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد پر، کلمہ پڑھ لے، پیغمبر سے کہے معاف کر دو، ہم نے آپ کی عظمت کو نہیں سمجھا تھا، تو پیغمبر کی کیا ذمہ داری ہے؟ پیغمبروں میں سے ہو میرے حبیب، ذمہ داری یہی ہے کہ اگر وہ ہاتھ جوڑ لے، معافی مانگ لے، تو اسے معاف کر دینا ہے۔ مگر عزیزان گرامی، وہ لوگ کیسے ہیں جسے پیغمبر یہ بتاتے رہے میری رسالت مکمل ہی نہیں ہوگی بغیر اس کے، دیکھیں غور کریے گا، میری رسالت مکمل ہی نہیں ہوگی بغیر اس کے۔ اے اللہ کے حبیب، کس کے بغیر؟ کہ اس کے بغیر، جب تک کہ وہ کعبے میں نہ آ جائے، ہائے ہائے، جب تک کہ وہ کعبے میں نہ آ جائے۔ اے میرے حبیب، صرف کعبے ہی تک محدود ہے کہ نہیں؟ کعبے کے بعد ایک میدان ہوگا، اس میدان میں کجاوے کا منبر ہوگا، وہ صرف اور صرف علی نہیں ہوگا، رسالت بھی ہوگی، امامت بھی ہوگی۔ صلوات علی محمد وعلی عزیزان گرامی، بغیر اس کے میری رسالت مکمل نہیں ہے۔ اور صرف رسالت کا معاملہ نہیں ہے، بغیر اس کے قرآن بھی مکمل نہیں ہے، بغیر اس کے اسلام بھی مکمل نہیں ہے۔ تو وہ کہاں آیا، کس کے ہاتھ پہ آیا، کون سی تاریخ میں آیا، کتنا بجا تھا، یہ ہم 1400 سال سے بتا رہے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں، یا تمہارے سننے میں گڑبڑی ہے یا سمجھنے میں گڑبڑی ہے؟ کہ میاں نہ سننے میں گڑبڑی ہے نہ سمجھنے میں گڑبڑی ہے، خون میں گڑبڑی ہے۔ نہ سننے میں گڑبڑی ہے نہ سمجھنے میں گڑبڑی ہے، خون میں گڑبڑی ہے۔ کہ کیسے؟ کہ امام حسین نے آخری لمحات میں اپنے خطبے میں یہی کہا تھا، میں جانتا ہوں میری بات تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھر گیا ہے۔ صلوات علی محمد وعلی عزیزان گرامی، یہ ہے معاملہ۔ بہرحال اللہ نے اپنے حبیب کو پیغمبر بنایا، صادق بنایا، امین بنایا، معجز نما بنایا، اور وارث قرآن بھی بنایا۔ اور صرف یہیں تک نہیں، موت اور حیات کا مالک بھی بنایا۔ دیکھیں، ایک مرحومہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، میں کچھ باتیں عرض ضرور کروں۔ موت اور حیات کا مالک بھی بنایا۔ کچھ لوگ اس دنیا میں اپنی زندگی جی رہے ہیں، دیکھیے گا، اپنی زندگی میں اور پیغمبر والی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اپنی زندگی کیا؟ کہ مولانا صاحب، انسان تو دنیا میں آزاد ہے۔ میاں تو کیا تم جانور ہو گئے ہو؟ وہ بھی آزاد ہے۔ ہاں، انسان آزاد ہے، مگر اپنے ہی کھیت کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کوئی ایسا انسان ہے جو اپنے ہی کھیت میں محنت کر کے اسے جوتے، اسے بوئے، پانی بھی دے، اور لہلہاتے ہوئے چمن کو اپنے ہی ہاتھوں برباد کر دے؟ ایسی آزادی تو انسان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مگر جانور اپنا بھی کھا جائے گا، غیروں کا بھی کھا جائے گا۔ مگر عزیزان گرامی، یہ جو افراد صرف اپنی زندگی جی رہے ہیں، ان میں اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، ان میں اور جانور میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ کہ کیسے؟ کہ جانور کی فطرت یہ ہے، اپنا بھی کھا جائے گا، مالک کا بھی کھا جائے گا، غیروں کا بھی کھا جائے گا۔ ایسے ہی بدترین جانور اشرف المخلوقات میں بھی ہے، حرام بھی کھا جاتے ہیں، حلال بھی کھا جاتے ہیں۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔
लिहाजा हमें सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं जीना है, अल्लाह की तरफ से जो पैगंबर ने जिंदगी गुजारने का हुक्म दिया है उस जिंदगी पे जियो। का उस जिंदगी पे अगर हम जिएंगे तो क्या मिलेगा? का वाजिब का आईना तुम्हें नजर आएगा, हलाल का आईना तुम्हें नजर आएगा, हराम का आईना तुम्हें नजर आएगा, मुस्तहब का आईना तुम्हें नजर आएगा, मकरूह का आईना तुम्हें नजर आएगा, मुबाह का आईना तुम्हें नजर आएगा। का किस रास्ते पे? का उस रास्ते पे जिस रास्ते पे पैगंबर हैं। ऐ मेरे पैगंबर, यकीनन तुम उस रास्ते पे हो जो मेरा रास्ता है। अब पता ये चला जो पैगंबर के रास्ते पे होगा कभी सकीफा का कलमा नहीं पड़ेगा, गदीर का कलमा पड़ेगा। सलावत पड़े मोहम्मद वाले। लिहाजा यहाँ पे सारे आईने हैं, मगर ये आईना हमारी समझ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? तो उसकी शक्ल मत देखो, उसका खून देखो। ये शक्ल वक्ल तो कहने की बात है, अरे इसकी शक्ल शैतान जैसी है। अब कभी कभी शैतान ही बड़ा चालाक हो जाता है, अच्छे ही आदमी की शक्ल वो अख्तियार कर लेता है, अच्छे ही आदमी की वो शक्ल अख्तियार कर लेता है। का क्यों? का यही तो सबसे बड़ी चालाकी है। शैतान जानता है भयानक रूप में गया तो डर के भाग जाएगा, अच्छे रूप में जाएंगे तो हम भी करीब हो जाएंगे, वो भी करीब हो जाएगा। तो किसी की शक्ल पे न जाया करो, उसके खून का मुतालिया करो, पता चल जाएगा ये इस्लाम वाला है या कुरान वाला है या नबी वाला है या अली वाला है या नमाज वाला है या रोजा वाला है। सब कुछ जानते हुए फिर भी शैतानियत के उस दरवाजे को खटखटा रहा है जहां पर जिंदगी नहीं बल्कि मौत नजर आती है। याद रखो, इस तरह से जीने का कोई फायदा नहीं है जो जिंदगी में भी मुर्दाबाद हो, मरने के बाद भी मुर्दाबाद हो। सलावत करे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ाने गिरामी, तीन बातें और बची हैं जो मुझे अर्ज करना है। तो ये है इंसान अपनी जिंदगी जी रहा है, जिंदगी पाने के बाद क्या हमें अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? जैसे नमाज पढ़ना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, हज करना इबादत है, खुम्स देना इबादत है, ज़कात देना इबादत है, सच बोलना इबादत है, झूठ से परहेज करना इबादत है, वैसे ही शुक्रिया अदा करना भी इबादत है, वैसे ही से। मगर इतना हल्का हमने इसे समझ लिया है, इसे हमने बहुत हल्का समझ लिया है। और जिन लोगों ने इसे हल्का समझ लिया है तो मैं उन्हें दो मैदान बता रहा हूँ, एक है गदीर का मैदान, दूसरा है करबला का मैदान। दोनों मैदानों में देखो किसने शुक्रिया अदा किया है, किसको बुखार हुआ है। ये जब आप इसका मुतालिया कर लेंगे तो कभी भी शुक्रिया की इबादत से दूर नहीं भागेंगे। का क्यों? का इसलिए कि जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हो, अल्लाह इतना खुश हो जाता है, औलाद में भी इजाफा करता है, माल में भी इजाफा करता है। तो अगर तुम इजाफा चाहते हो तो शुक्रिया अदा करते रहो, जिंदगी में भी इजाफा होगा, माल में भी इजाफा होगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा हमें पैगंबर की जिंदगी, जो पैगंबर ने जिंदगी बताई जीने का, हम उसे हमें जीना चाहिए। और दूसरी बात ये है, हम किस दीन के मानने वाले हैं? इस्लाम। तो हमें किस दीन पे मरना है? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
हमें किस दीन पे मरना, मजहब पे मरना या दीन पे मरना? देखिए ये भी एक सवाल है। हम किस दीन के मानने वाले हैं? का इस्लाम के। तो हमें मजहब पे मरना है या इस्लाम पे मरना है? हर मजहब पे मरने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ कह रहा हूं। हर मजहब पे मरने की जरूरत नहीं है, उस दीन पे मरने की जरूरत है जो दीन खतरे में पड़ जाए और दीन ये कह रहा हो कि बगैर खून के मैं बचूंगा नहीं। तो पता ये चला जो सच्चे मजहब से होगा, जो सच्चे दीन पर होगा वो सच्चे मजहब से होगा, और जो सच्चे मजहब से होगा वो सच्चे दीन पर होगा। तो अब यहाँ पर ये देखना है हमें उस मजहब पे मरना है जिस मजहब का रहबर हो, जिस मजहब का रहबर हो। अरे मजहब बनाना बहुत आसान है, रहबरियत का मजहब बनाना बड़ा मुश्किल है। तो लिहाजा हमें उस दीन पे मरना है जो दीन खतरे में हो, वो भी अल्लाह का दीन हो। हमें उस मजहब से निकल के आना है जिस मजहब का नुमाइंदा हो। मगर अज़ीज़ान गिरामी, आजकल का तो ड्रामा खूब है। खुद ही मजहब के ठेकेदार, खुद ही। हमसे बड़ा कोई मजहब का जानने वाला ही नहीं, खुद ही हम ठेकेदार बन गए। खुद ही एक दूसरे को बोहतान लगाना शुरू कर दिया। मजहब ये नहीं सिखाता है कि किसी को तंज किया जाए, मजहब ये नहीं सिखाता है किसी पे बोहतान लगाया जाए। मजहब और दीन ये बताता है कि मजहब कई है, मगर जो सच्चा और सही मजहब होगा वो दीन की दावत देगा, मुनाफिकत की दावत नहीं देगा। लिहाजा हमें मुनाफिकत से अगर बचना है तो सच्चे मजहब की तरफ चले आओ तो तुम्हें सच्चा दीन भी मिल जाएगा। अब अभी जाने के जिस दीन को हम मानते हैं, कौन ऐसा इसमें से है जो भी मेरी आवाज सुन रहा है, जो नहीं चाहता हो कि मैं दीन का काम करूं? कोई है ऐसा जो ये इन्हीं में से कोई एक कह दे मौलाना मेरी मर्जी, मेरा मन नहीं ये करता कि मैं दीन का काम ना करूं? कोई नहीं ऐसा भी नहीं, मैं भी उसमें शामिल हूं। हम सब के दिल में यही ख्वाहिश होती है कि हम दीनी काम को अंजाम दें, है ना? मगर अज़ीज़ान गिरामी, चाहते हुए भी हम कर नहीं पाते। कौन नहीं चाहता कि मैं नमाज पढ़ूं? कौन नहीं चाहता कि मैं रोजा रखूं? कौन नहीं चाहता कि मैं हज करूं? कौन नहीं चाहता कि मैं ज़कात दूं? कौन नहीं चाहता कि मैं सच बोलूं? कौन नहीं चाहता कि मैं हक बोलूं? कौन नहीं चाहता कि मैं झूठ से परहेज करूं? कौन नहीं चाहता कि मैं यतीमों की परवरिश करूं? कौन नहीं चाहता कि मैं भूखों को खाना खिलाऊं? सब चाहते हैं, मगर चाहते हुए कुछ लोग नहीं कर पाते। चाहते हुए भी कुछ लोग नहीं कर पाते। तो कभी एक लम्हे के लिए हमने सोचा कि दीन का काम चाहते हुए भी हम नहीं कर पाते, तो वजह क्या है? वजह क्या है? कोई रोक रहा है क्या? वजह क्या है? अज़ीज़ान गिरामी, कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, एक छोटी सी वजह है। जब दीन का काम चाहते हुए हम न कर पाए तो कहीं गली गली भटकने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी ग़िज़ा का मुतालिया करें, अपनी ग़िज़ा का मुतालिया करें। का सरकार ग़िज़ा का मुतालिया क्या है? का ये देखो हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं। का वो कैसे? का जब हलाल खाओगे कि दीन की तरफ जाओगे, हराम खाओगे दीन से दूर हो जाओगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी खुद की ग़िज़ा का मुतालिया करना है। आया हम हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं?
अगर हलाल खा रहे हैं तो दीन की तरफ जाएंगे, अगर हराम खा रहे हैं तो दीन से दूर होते चले जाएंगे। फिर वही जुमला याद आ रहा है, हुसैन ने फिर यही करबला में कहा था, मैं जानता हूं कि मेरी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, इसलिए कि तुम्हारा शिकम माले हराम से भर गया। तो पैगंबर और रसूल और इमाम की बातें उसी की समझ में नहीं आती जिसके शिकम जो है माले हराम से भर जाते हैं। तो मेरे अजीजों, हम दीन के लिए पैदा हुए हैं, हम सुन्नत पैगंबर को बाकी रखने के लिए पैदा हुए हैं, हम कुरान की अजमत को बाकी रखने के लिए पैदा हुए हैं, हम सच बोलने के लिए पैदा हुए हैं, हम हक का साथ देने के लिए पैदा हुए हैं। लिहाजा अगर इन चीजों से हमें कुर्बत हासिल करना है तो कहीं दूर न जाओ, बल्कि अपने इस माल का मुतालिया कर लो, ताकि पता चल जाए हमें कौन सी चीज रोक रही है। खुदा की कसम, कभी कभी ये ज़बान लजीज हो जाती है, कभी कभी ये आंखें लजीज हो जाती है, कभी कभी ये कान लजीज हो जाते हैं, कभी कभी ये फिक्रें लजीज हो जाती है। तो भाई मामला क्या है, लजीज होने का मतलब क्या है? कि बस कोई चीज नहीं है, ये गिज़ा है, कोई और चीज नहीं है, ये गिज़ा। लिहाजा पैगंबर ने कहा है, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, हलाल खिलाओ। मामला क्या हो गया है, हलाल हम खाते, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं हलाल खाता भी हूं। देखिए, मैं हलाल खाता हूं, मगर हलाल जहां खिलाने की बात आती है, मैं अगर भी देखता हूं, क्यों? वजह क्या? खाता तो मैं खुद हलाल हूं, मगर जहां पर किसी दूसरे की बात आती है तो मैं इधर उधर देखने लगता हूं। कैसा वजह क्या? काम मेरी खुद की आदत है सब कुछ खा जाने की, मेरी खुद की, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरी खुद की आदत है सब कुछ खा जाने की। ये भूखा मरे मेरी जात पे कौन सा असर? तो अल्लाह क्या कहता है, हलाल भले होगा मगर वही माल तेरा हराम हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अगर हलाल की कमाते हैं तो हलाल की खिलाने की भी कोशिश करें। कहाँ खिलाएं? का पड़ोसी अगर भूखा हो उसे खिलाओ, यतीम अगर भूखा हो उसे खिलाओ। तो पता ये चला खिलाने के चक्कर में हम इधर होने लगे। तो अब अज़ीज़ाने गिरामी, न दीन पे रहे, न नबूवत पे रहे, न इमामत पे रहे, भाई एक हमने अमामा रख लिया, ये रिदा भी पहन लिया, पता ये चला हुज्जतुल इस्लाम भी हो गए। याद रखो, ये अमामा रिदा कबा हुज्जतुल इस्लाम तो बना देती है, मगर अल्लाह की राह में अगर तुम सही साबित हो गए तो ये अमामा भी सही, रिदा भी सही, कबा भी सही है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। भाई मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लिहाजा अल्लाह की बारगाह में हलाल खिला। ए मेरे हबीब, मैंने तुम्हें पैगंबरों में से बनाया और दीन हक पर तुम चल रहे हो। ये कोरोना वायरस, इसे कुछ सीखा? बस दो बातें हैं, एक कोरोना वायरस वाली और एक बात और, उसके बाद रखते मसाइल। कोरोना वायरस, हाँ, कोरोना वायरस जो है, नहीं, मैं वो बात कर रहा हूँ पूरी दुनिया में है, तो इससे कुछ सीखने को मिला कि नहीं? आप कहेंगे हमारी बात कर रहे हो, हमने तो बहुत कुछ सीख लिया। तो क्या क्या सीखा? कब वक्त से पहले मजलिस आ जाते थे और बहुत सारी बातें। मगर अज़ीज़ाने गिरामी, जब कोई कोरोना वायरस करता है तो मुझे एक वायरस और याद आता है। एक है कोरोना वायरस जो रिश्तेदार को रिश्तेदार से दूर कर दिया।
मुसाफिया नहीं करना, दूरी से मास्क लगाना, ये करना वो करना। अब तो रिश्तेदार भी आए और ऐसे ही करके चले गए। ये तो बहुत बड़ी सीख मिली। तो जिस कोरोना वायरस ने इतनी बड़ी सीख दी है, तो एक कोरोना वायरस ने इतनी बड़ी सीख दी है, तो एक वायरस और है। कोरोना वायरस का ये असर है कि पड़ोसी से मुसाफिया नहीं करता। अब भूख से अली का वायरस जिसे लग जाए, जिसके अंदर भूख से अली का वायरस हो जाए, उसके लिए क्या करना है? अभी दाने गिरामी, पूरी दुनिया परेशान है। कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। क्या हुआ? कब वायरस भरपूर ताकत में है, तो वायरस जब भरपूर ताकत में दुनिया में आ जाए तो दुनिया में भगदड़ी मच जाए। वो वायरस लेके जब रोजे महशर जाएगा, जब रोजे महशर जाएगा, तो याद रख ले, नमाज तलाश करेगा, नमाज नहीं मिलेगी। रोजा तलाश करेगा, रोजा नहीं मिलेगा। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अदीदाने किराम, ये भी एक वायरस है। अच्छा, ये बुग़्ज़ अली का वायरस था। कुछ वायरस हमारे अंदर है। एक वायरस ने कई वायरस को लिख दिया। क्या का नमाज न पढ़ने का वायरस, मैं अपनी बात कर रहा हूं। रोजा न रखने का वायरस, झूठ बोलने का वायरस, चुगली करने का वायरस, यतीमों का माल खा जाने का वायरस, इख्तिलाफ करने और कराने का वायरस, इत्तेहाद से दूर रहने का वायरस, बहुत सारे वायरस। तो एक इंसान के अंदर जब इतने वायरस होंगे, तब रोजे महशर जाएगा। मोहम्मद कहाँ है, अली कहाँ है, हसन कहाँ है, हुसैन कहाँ है, हम सोचते रह जाएंगे। एक कोने से आवाज आएगी, दुनिया का वायरस तुझे याद नहीं, दुनिया का वायरस तुझे याद नहीं। याद रख ले, मेरा जुलूस तो निकालता था, मेरे नाम का फर्श तो बिछाता था, मेरा नावा तो पढ़ता था, मगर इतना वायरस लेके आया है, न तू मुझे मिलेगा, मैं ना तुझे मिलूंगा। इसलिए कि ये वायरस का कमाल है। तो याद रखो दुनिया वालों, अगर हमें अली से मुलाकात करना है तो नमाज सही वक्त पे पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात करे, ढूंढने की जरूरत नहीं, खुद ही आवाज आएगी, इधर आजा अली, यहाँ पर है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी में सारे वायरस को हमें दूर करना है। मेरे पैगंबर, तुम उस रास्ते पे चल रहे हो जो मेरा बताया हुआ रास्ता है। मेरे अजीजों, हमेशा हक का, बस यही शरफ़ मसाइब, हमेशा हक का साथ देना, चाहे उसके लिए जान ही क्यों न चली जाए। हक, ये मत देखना हक पर कौन है, ये देखना हक पर है। देखिए, जोने की कदर करिए, ये नहीं हमें देखना हक पर कौन है, ये देखना हक पर है। इसमें मजहब की कैद नहीं है। जो हक पर है उसका हमें साथ देना है। यही इस्लाम भी कह रहा है, कुरान भी कह रहा है, करबला वाले भी कह रहे हैं। करबला वालों ने हमेशा हक्कानियत को बुलंद किया है, बातिल को पस्त किया है। बातिल ऐसा पस्त हुआ है कि उसका नाम कोई लेने वाला नहीं है। अजीजों, अभी अभी अय्याम अज़ा गुजर गए।
कितने दिन हुए? 2 या 3? खुदा की कसम कभी हमने गौर किया सैयदा कहाँ कहाँ गई होंगी? जरा एक लम्हे के लिए आलम तसव्वुर में डूब कर इस जुमले पे गौर और फिक्र करिए। वो बीबी जिसके पहलू टूट गए हो, असा का सहारा लेकर हर मजलिस हर जुलूस में जा जाके एक सूखा हुआ रुमाल निकाले और उस सूखे हुए रुमाल को हमारी आंखों के करीब ले आए। फिर उसके बाद वो बीवी हमारे इस आंसू को उस रुमाल में लेकर हमारे और आपके इमाम के पास जाए और इमाम सवाल करें, अम्मा कहाँ गई थी? माँ जवाब दे, बेटा तेरे चाहने वालों ने तेरे नाम का फर्श बिछाया था। फिर वो बेटा आवाज दे, अम्मा क्या कोई तोहफा लेकर आई हो? वो माँ उस बेटे का जवाब दे, हाँ मेरे लाल तेरे जख्मों का मरहम लेकर आई। तो हमारे जख्मों के मरहम क्या हैं? हुसैन के जख्मों के मरहम क्या हैं? हमारे और आपके आंसू। मगर अजीज़ों मैंने रवायत में पढ़ा है, शेख अब्बास कुम्मी भी यही लिखते हैं, अल्लामा मजलिसी भी यही लिखते हैं कि जहाँ फातिमा आती हैं वहीं अली की बेटी आती है, जहाँ अली की बेटी आती है वहीं हुसैन शहीद करबला की बेटी आती है। और जब हम मसाइब हुसैन बयान करते हैं और मसाइब सुन के गिरिया करते हैं, वो बच्ची कहती है, दादी ए फूफी अम्मा, ए दादी ये कौन लोग हैं जो मेरे बाबा के नाम पे गिरिया कर रहे हैं? और उस बच्ची को जवाब दिया जाता है, बेटी ये कोई गैर नहीं है, तेरे अपने हैं, हुसैन के अदादार हैं। वो बच्ची कहती है, ए दादी अगर ये अदादार करबला होते, हाय मैं तमाचे लगाती। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम करबला। अजीजों आपने सुना होगा जब सब कत्ल हो गए ज़ैनब को कहाँ से गुजारा गया? वहाँ से जहाँ पर भाई का लाश बेगोरों को भर पड़ा। सुनो, शेख अब्बास कुम्मी फरमाते हैं, ज़ैनब को असीर किया गया। मेरे पढ़ने पे ना जाना, ज़ैनब को असीर किया गया। असीर कई तरीके के होते हैं। जमाने ने कभी ऐसा असीर नहीं देखा न देख सकता है। का कैसा असीर? का ऐसा असीर, एक मर्द था, उसके हाथों में हथकड़ी थी, पैरों में बेड़ी थी, कमर में लंगर। हाय मेरे अजीजों, कमर में खारदार, कमर में लंगर, गले में खारदार तो और मिहारे नाका बना हुआ था। और उस नाके पे कुछ बीबियां बैठी हुई थी जिनके हाथ फंसे गर्दन बंधे हुए थे, जिनके हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। ए शेख अब्बास फिर लिखते हैं, तुम जानते हो उनमें कौन किसका क्या लगता था? जब मैं ये जुमला पढ़ता हूँ, जब मैंने पहली मर्तबा पढ़ा, खुदा की कसम मैं अपने आंसू को न रोक सका। उनमें कौन किसका क्या लगता है? शेख अब्बास लिखते हैं, जिसका लाशा बेगोरो कफन पड़ा था, हाय जिसके हाथ पसे गर्दन बने थे, उसका भाई था, वो उसकी बहन थी।
जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। और सुनोगे, जिसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी वो क्या लगता था? उसका एक चचा था जिसका लाशों पे गोरो कफन पड़ा था। जैसे ही उसने अपने चचा के लाशे को देखा, एक आहे सर खींची, ए मेरे चचा, तेरे मरने से ये देखो लोहे का जेवर पहनकर अब सज्जाद कहाँ जाएगा, कुछ पता नहीं है। और सुनो, शेख अब्बास लिखते हैं, उनमें कौन किसका क्या लगता था? एक बेटी थी जिसकी उम्र 4 साल की थी, तमाचे खा चुकी थी, तमाचे खा चुकी थी, कुर्ता जल चुका था, कान की लवें फट चुकी थी, हाय यतीमी चेहरे से झलक रही थी। उस बेटी ने अपनी फूफी से पूछा, ये किसका लाशा है? फूफी अम्मा, ये किसका लाशा है? फूफी अम्मा, ये किसका लाशा है? अब वो फूफी क्या बताए कि तेरे बाप का लाशा या मेरे भाई का लाशा? जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मौला तुझे कोई गम न दे मेरे अजीजों। अली की बेटी ने अपने आप को नाके से गिरा दिया। भैया, ये बहन जा रही है। ए भैया, हाँ, इस काफिले की कैफियत तो देख मेरे भाई, ये मेरी सकीना गरीब है। ए मेरे भैया, जब तक ज़ैनब जिंदा रहेगी तेरी बेटी पे कोई आंच नहीं आएगी। सुनो मेरे अजीजों, ए मेरे भाई, सकीना पे मैं आंच ना आने दूंगी। मगर मेरे अजीजों, जब ये काफिला चलने लगा था, हाँ, एक मर्तबा लोगों ने एक मशवरा बनाया, काफिले के साथ साथ ये सर भी जाएगा, ये सर भी जाएगा। सारे सरों को नेज़े पे बुलंद कर दिया गया, मगर 2 सर थे जो नेज़े पे नहीं बुलंद हो रहे थे। एक तो सर हुसैन था, दूसरा सर अब्बास था। एक मर्तबा नेज़ा, एक मर्तबा ताज़ियाना लहराता हुआ हाशिम मलऊन सैयद सज्जाद के पास आया और अर्ज़ करने लगा, सज्जाद बता, तेरे बाप का सर नेज़े पे क्यों नहीं बुलंद होता? तेरे चचा का सर नेज़े पे क्यों नहीं बुलंद होता? हाय, वो सैयद सज्जाद सर को झुकाए हुए अपने बाप के सर के करीब आया और रोने लगा, चचा बता, तेरा सर नो के नेज़ा पे बुलंद क्यों नहीं होता? बाबा बता, तेरा सर नो के नेज़ा पे बुलंद क्यों नहीं होता? हाँ, कटे हुए सर से आवाज आई, बेटा सज्जाद, तू वक्त का इमाम है, जरा गौर से देख तो आ। सैयद सज्जाद ने क्या देखा? एक बुरके वाली बीवी है, सरों से लिपटी हुई है। हाय मेरे गाजी, हाय मेरे बेटे, हाय मेरे अब्बास, हाय मेरे हुसैन, मैंने क्या तुझे इसी दिन के लिए पाला था? जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरे अजीजों, मैं मजलिस को खत्म कर देता। एक मरहूमा के साले सवाब की मजलिस है। ज़ैनब चली, ज़ैनब चली, कहाँ चली? कूफे का बाजार पता किया, शाम का बाजार भी पता किया, शाम का दरबार भी पता किया। हाँ मेरे अजीजों, वो तारीख अभी अभी गुजरी है। अब ज़ैनब ने वादा किया था, भैया जब तक ज़ैनब जिंदा रहेगी तेरे गम को सुनाती रहेगी। लो अज़ादारों, रिहाई मिल गई ज़ैनब को, ज़ैनब को रिहाई मिल गई। और उसी लाशे पे कहा था, भैया अगर मौत ने मोहलत दी ये ज़ैनब मदीने जरूर जाएगी। ए भैया, तेरा कुर्ता अम्मा की लाश में रखेगी। लो रिहाई मिल गई, रिहाई मिल गई। अली की बेटी तैयार हो गई। मगर मेरे अजीजों, रिहाई मिलने के बाद ज़ैनब कहीं और न गई। एक
छोटे से जिंदान में गई। वहां छोटी सी कब्र बनी हुई थी, उसके सिरहाने अपना दाहिना रुखसार रखे लेट गई और कहने लगी सकीना उठो, ए मेरे भैया की अमानत उठो, ज़ैनब जा रही है। ए मेरी बच्ची तू ये न सोचना तेरी फूफी क्यों आई है, इसलिए कि हम में से सबसे ज्यादा तमन्ना वतन जाने की तुझे थी। ए मेरे भैया की अमानत उठो, लो गोशवारे लेकर आई हो। ए मेरे भैया की अमानत उठो, लो रिदा लेकर आई हो। रोने वालों कब्र सकीना से आवाज आई, मुबारक फूफी जा वतन चली जा, मगर मेरी फूफी अम्मा अगर मेरी बहन सबरा मिले उसे मेरा सलाम कहना, और फूफी अम्मा इतना जरूर मेरी बहन से कह देना, अरे जितना तू मदीने में तड़पती थी सकीना, हाँ सकीना करबला में तड़पती रही, जितना तू मदीने में तड़पती थी, हाँ सकीना कैद जिंदान में तड़पती थी कि शायद ये जिंदगी सबरा से मिला दे। मेरी बहन से कहना खुदा हाफिज़, तू मदीना रह गई, मैं जिंदान में रह गई। ज़ैनब मदीना आ गई। लाशे हुसैन पे यही कहा था भैया मैं जाऊंगी। अब आ गई ज़ैनब शहर मदीना में, मदीने वालों हुसैन मारा गया। एक मरतबा सज्जाद ने फरमाया फूफी अम्मा घर चल, का फूफी अम्मा ने फरमाया कि बेटा सज्जाद घर नहीं जाएंगे, हाय मैं अपने भैया से वादा करके आई हूँ, पहले सुनानी सुनाऊंगी। ओ मेरे अजीजों, ये अली की बेटी नाना के कब्र पे आई और आने के बाद कहने लगी नाना ज़ैनब रुठ के आई है। ये अली की बेटी भैया के कब्र पे आई, भैया ज़ैनब रुठ के आई है। इस कायनात में हर बेटी की माँ होती है, जब परदेश से कोई बेटी आती है सबसे पहले घर में अम्मा के करीब जाती है। ये ज़ैनब अली की बेटी फातिमा की बेटी अम्मा की कब्र पे आई। तारीख में लिखा हुआ है अम्मा की कब्र को देखा नाके से गिरा दिया, अम्मा तेरी कब्र पे इस तरीके से ज़ैनब लाएगी, लो अदाकारो अपने जिस्म को मदीने की जमीन पे बच किया, अम्मा की कब्र पे चली, खूब आराम होना और खुल का अम्मा की नजर पे रख दिया। अम्मा ज़ैनब चल के आई है, ए अम्मा जिसे आपने चकिया बीस पाला था, ए अम्मा मैं उसे खो के आई। परवरदिगार हमारी छोटी सी दुआ को कबूल फरमा, ऐ मेरा अल्लाह जो मकरूज है उनके कर्ज को अदा फरमा। ऐ मेरे महबूब जहाँ जहाँ शान अली उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार मरहूमा की गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। ऐ मेरे अल्लाह जो लावल्द हैं वास्ता है तुझे शहजादे अली असगर का, उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम का कोरोना जैसी बीमारी को निश्त नाबूद फरमा। मेरा महबूब तुझे वास्ता है बीबी ज़हरा के हक़ का हमारे वक्त के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके आवान और अंसार में हमें शुमार फरमा। आप हज़रात से गुजारिश है एक मरतबा सूरह अलहम 3 मरतबा सूरह कुल पढ़ के शहनाज बानो मरहूमा बिनते जुम्मन अली मरहूम, उम्मुल बनीन मरहूमा बिनते अब्दुल गफूर मरहूम, सराजुद्दीन मरहूम, वल्द जुखन मरहूम, अली हैदर मरहूम, जहरा मरहूमा, फ़हीमा करबलाई की रूह को बख्श दे।
السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى جدك وأبيك. السلام عليك وعلى أمك وأخيك. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها الإمام الغريب. السلام عليك أيها الإمام الشهيد. السلام عليك يا أبا الحسن علي بن موسى الرضا. روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أعوانك وأنصارك ورحمة الله وبركاته.